संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਫਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क इसी जीवन में है, लेकिन सोचिए, अगर एक मासूम बच्चा जो किसी का भी दोषी नहीं है
हर दिन अपने पिता को शराब में डूबा हुआ देखे, घर में लड़ाई झगड़े सहन करे, अपनी मां पर होते अत्याचार और खुद पर उठते हाथों का दर्द झेले, तो उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी। यह कहानी है हरियाणा के हरविंदर सिंह जी की, जिनका जीवन कभी दुखों और तकलीफों का दूसरा नाम था। बचपन में उन्होंने अपने घर को एक नरक के रूप में देखा। पिता की शराब की लत ने पूरे परिवार को दर्द और गरीबी के दलदल में ढकेल दिया। छोटी उम्र में ही हरविंदर जी ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। कर्ज इतना बढ़ गया कि कई रातें नींद की गोलियों के सहारे गुजारनी पड़ी। खुद नशे की गिरफ्त में आने के बाद भी कोई राह नजर नहीं आ रही थी। लेकिन कहते हैं, जहां अंधकार होता है वहीं प्रकाश की किरण भी होती है। उनकी जिंदगी तब बदली जब वे एक पूर्ण संत की शरण में पहुंचे। वहां उन्हें नाम दीक्षा मिली और उनके जीवन में धीरे धीरे सुकून और खुशहाली लौट आई। आइए जानते हैं हरविंदर जी की यह प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? हरविंदर सिंह है जी। हरविंदर जी आप कहाँ से हैं? तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद जी, हरियाणा। हरविंदर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2015 में संत रामपाल जी से दास ने नाम दीक्षा ली थी। हरविंदर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी किया करते थे? गुरु जी से नाम लेने से पहले हम गुरुद्वारा में जाते थे, वही साधना करते थे। सिख धर्म से हम बिलोंग करते हैं। सर आपने बताया कि आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, तो क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? कारण ये था भक्त जी, विस्तार से हम बताना चाहते हैं जी। घर की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। हम गुरुद्वारे को मानते थे भक्त जी, हमारे पास ही गुरुद्वारा था घर के, तो हम वहाँ जाते थे। जैसे महीने में एक बार वहाँ लंगर लगता था, वो खा के आ जाते थे। कोई भक्ति साधना जैसे घर वाले बताते थे, हाँ भी ये अपनी आज संग्रांद है जी, महीने में आपका लंगर लगेगा जी, तो वो आपने जाना है, बस सेवा करनी है। और जैसे हम गुरुद्वारे थे भक्त जी, वहाँ जाते थे। तो उसके बाद भक्त जी घर की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जैसे पिताजी थे, वो दारू वगैरह बहुत ज़्यादा पीते थे जी, वो सारा नशा करते थे, दारू पीते थे, वो बोरिंग का काम करते थे। वो सुबह घर से चले जाते थे और शाम को आते थे, और इतनी दारू पीते थे भक्त जी, वो बोतल की बोतल खड़े पी जाते थे। तो वो शाम को आते जब, तो आते घर में गालियाँ देते और लड़ाई झगड़ा करते और हमें और हमारी माता जी को मारते। तो उसके बाद हम इतने डरे हुए थे भक्त जी, छोटे थे भक्त जी, पढ़ाई कर रहे थे, तो हम पिताजी से उनको कुछ कह नहीं सकते थे, तो हम कुछ समझा नहीं सकते थे क्योंकि हमसे वो बड़े थे। तो ऐसे भक्त जी घर का सिस्टम चलता रहा भक्त जी। थोड़ा सा हमने ज़्यादा उम्र हुई तो हमें कुछ पता चला, घर की स्थिति देखी हमने, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी भक्त जी। तो ऐसे उसके बाद हमने थोड़ा सा दास की 14-15 साल उम्र हुई तो हमने खेती करनी शुरू कर दी भक्त जी। तो हमारा छोटा भाई था, वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, वो कह रहा था कि मैं तो खेती करूँगा, तो दास को भी उसके साथ खेती करना पड़ा। तो उसके बाद हम दोनों भाई खेती करने लगे, तो हमने देखा कि हमारे तो ज़मीन भी गिरवी कर रखी है हमारे पिताजी ने, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था। बैंक का लोन हमने देना है सर जी, तो ज़मीन वो हमारी गिरवी पड़ी थी। तो उसके बाद जब हमने घर की स्थिति संभाली तो धीरे धीरे करके भक्त जी सर जी वो लोन चुकता किया हमने, ज़मीन थी वो भी गिरवी छुड़वाई हमने। तो इतना कर्ज हो गया था सर जी, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दास रहने लग गया। नींद की गोलियां खा के सोता था, रात को नींद नहीं आती थी, इतनी बुरा हाल हो गया था, सारा शरीर खराब हो गया था। तो दास ये सोचता था अभी इतना कष्ट हमें क्यों हो रहा है, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, भक्ति करते हैं सर जी, लेकिन फिर भी कोई राह नहीं मिल रहा। तो बड़ी बहन थी, उसकी शादी करनी थी, क्योंकि हमारा सिख समाज है, बिना दहेज के तो कोई शादी करते ही नहीं है जी। 10-15 लाख का खर्चा था, वो कैसे आएगा उसका कोई पता नहीं था। 3 साल हमने खेती की। उसके बाद सर जी क्या हुआ, सारी ज़मीन हमें गिरवी रखनी पड़ गई। सारी ज़मीन हमने गिरवी रख के, तो जैसे वो कहते हैं ना, भी कष्ट आते हैं सारे एक बार ही आते हैं। हमारे पिताजी बीमार हो गए, ज़मीन हमने गिरवी रखी, पैसा इकट्ठा किया, तो लाख रुपए के आसपास उनके ऊपर खर्च आ गया। चलो 2 कारण बने। तीसरी बार फिर क्या हुआ, हमारा बोर ख़राब हो गया जी खेतों वाला।
तो 1,00,000 रुपये उस पर लगा जी। तो हम बिल्कुल ही जीरो हो गए थे भगत जी। सर जी तो क्या हुआ, तो घर की स्थिति इतना कर्ज बन गया था भी हमें घर से निकलना पड़ा काम धंधे के लिए। छोटे छोटे थे हम, तो कहीं हम दुकान पे लग गए जाके, छोटा भाई कहीं लग गया जाके, तो बहन की हमने शादी कर दी, ज़मीन हमारी गिरवी पड़ी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था हम करें तो करें क्या। एक दिन क्या हुआ, हमारे फूफा जी है, उन्होंने 10 से 4 महीने पहले गुरुजी से नाम लिया, संत रामपाल जी से। तो नाम लिया, वो हमारे घर पे आए, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे सतलोक है, वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, हैं परमात्मा बैठे हैं वहाँ पे, हम वहाँ से आए हुए हैं। तो हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था, क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं। 20 साल उम्र हो गई थी, बताया नहीं किसी ने भी सतलोक नाम की कोई चीज़ है। सच्चिखंड गुरु ग्रंथ साहब में आता है, वो नहीं बताया हमें किसी ने। तो क्या हुआ भगत जी, उन्होंने कहा भी आप साधना चैनल पे सत्संग आता है वो सुनो। तो हम वो साधना चैनल पे सत्संग सुनने लगे सर जी। तो उसके बाद भगत जी हमने 2014 में संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी। सर, आपने बताया कि आप अपने जीवन से बहुत परेशान थे, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। तो सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई? सर जी, जब से संत रामपाल जी से दास ने नाम लिया है, तब से हमने 1 रुपये की कमी नहीं देखी हमारे घर पे। तो उसके बाद संत रामपाल जी ने इतनी दया करी है, इतनी दया करी है, हम बता नहीं सकते भगत जी। इस चीज़ का हमारे रिश्तेदार और हमारे आसपास के पड़ोसी भी कहते हैं भी इन पे पता नहीं कौन सी दया हो गई है। हैं जो जाते हैं सत्संग में जाते हैं, सारा दिन बाद जाते हैं, लेकिन भी इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा दया हो गई है। आज दास के पास गाड़ी भी है, 2-2 बाइक खड़ी हैं घर पे, कहाँ एक साइकिल लेने का ब्योत नहीं था। दास के ऊपर इतनी दया करी है परमात्मा ने, दास बता नहीं सकता कि इसके नीच के ऊपर इतनी दया हुई है संत रामपाल जी की। दास को ये समस्या जो नजले जुकाम की थी वो 20 साल से थी सर जी। तो ये इसका हल कहीं नहीं हुआ, हमने ऑपरेशन भी करवा लिया, उसके बाद भी हल नहीं हुआ। इतनी दवाई की, जलंधर वगैरह सब बार जाके देखा, नहीं कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद हमने संत रामपाल जी से जब से दीक्षा ली है, उसके बाद वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई है। ये बिल्कुल सच्चाई है भगत जी, बिल्कुल सच्चाई है। सर जी, दास डिप्रेशन में रहता था, नींद नहीं आती थी, तो उसका भी संत रामपाल जी ने समस्या हल की है। ज्ञान से हमें पता चला अभी हम करने क्या आए हैं, जिससे हमें ज्ञान को समझकर तो हम स्थिति बढ़िया रहने लगी, अब नींद भी बढ़िया आती है। परमात्मा ने बहुत ज़्यादा दया की है। तो सर जी, पहला लाभ जुकाम का था, और दूसरा लाभ हम बताएं, हमारा भाई था, उसका विदेश का हमने 2-3-4 देश थे उनका ट्राई किया, पैसे भी भर दिए भगत जी। तो पैसों को ब्याज भी लग रहा था, लेकिन उनका वीज़ा नहीं निकल रहा था। तो हम ज़्यादा लंबा क्या भगत जी, उसने बोल दिया भी मैं तो आत्महत्या करूँगा भी, उसके बाद मेरे पास कोई हल नहीं, जा तो मेरा विदेश का बन जाए। उसका वीज़ा हमने दुबई, बहरीन, इन देशों का ट्राई किया हमने। फिर उसके बाद लबनान कंट्री है, उसका ट्राई किया, उसके पैसे भी भरे, तो लेकिन उसका कोई वीज़ा नहीं निकला। तो उसने जब आत्महत्या करने की कही, तो दास ने संत रामपाल जी से प्रार्थना की कि गुरुजी ये मरेगा, घर खराब करेगा, गुरुजी की दया करना। तो परमात्मा ने एक कारण बनाया, किसी ना किसी तरह उस टाइम हिसार हम तरीक पे जाते थे, तो वो मेरे साथ चला गया भगत जी। इतनी दया हुई संत रामपाल जी की, 12 बजे के बाद उसका फ़ोन आ गया हमें ऊपर से एजेंट का कि आपके भाई का वीज़ा निकल चुका है। तो हम हैरान थे भगत जी कि गुरु जी ने इतनी दया करी हमके ऊपर। बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा लाभ है गुरु जी का, संत रामपाल जी का हमारे ऊपर, कि हमारा भाई बच गया। आज वो 4 साल हो गए लगभग, वो विदेश में अपने पैसे कमा रहा है, अपनी कमाई कर रहा है। वो कुवैत में रहते हैं जी, वो बढ़िया उनका काम चल रहा है जी। तो तीसरा लाभ हमें ये हुआ, हमारा लोन था 5 लाख का, उसको लिया था हमने, तो वो चुकता कर दिया हमने बैंक का। तो बैंक वाले कह रहे भी आपको 20,000 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको एनओसी देंगे। वो एनओसी नहीं दे रहे थे हमें। तो हमें क्या, आप पहले बताते भी 5 लाख तो हमने एक भरा है, उसके ऊपर आप कह रहे हो 20,000 रुपये और देना पड़ेगा, या तो आप पहले बताते, क्योंकि हमने बैंक ट्रांसफ़र करनी थी वो। तो नहीं, वो कह रहे भी 20,000 रुपये तो आपको देना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो रतिया नामदान सेंटर है जी हमारा, वहाँ बैंक भी वहीं थी। तो दास वहाँ से उठ के आ गया जी उनके पास से। तो नामदान पे गुरु जी से प्रार्थना की, प्रणाम किया।
कि संत रामपाल जी, गुरु जी भी ऐसी ऐसी बात है, तो 20,000 रुपया मांग रहे हैं। तो 2-4 दिन निकले, चलो परमात्मा ने दया करी, तो वो काम हमारा 5,000 में बन गया। कहीं वो 20,000 रुपया मांग रहे थे और एनओसी देने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे थे, वो 5,000 रुपये में हमारा काम बन गया। तो सर जी एक लाभ और हुआ हमें। दास डिप्रेशन के कारण नशा करने लग गया था, दारू पीने लग गए थे हम, सिगरेट वगैरह पीने लग गए थे, ऐसी संगति हो गई थी, दारू के बिना हमें नींद नहीं आती थी। हालांकि हमारे पिताजी भी पीते थे, लेकिन हमें नींद नहीं आती थी रात को, गोलियां खा खा के दास रात को सोता था। तो इतना, उसके बाद जब संत रामपाल जी से हमने नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद हमने नशे को हाथ तक नहीं लगाया। तो उसके बाद एक लाभ और हुआ भगत जी, दास के अचानक रात को दर्द उठ खड़ा 9-10 बजे के आसपास। तो उसके बाद हमने सारी रात कष्ट में निकाली, तो टीके वगैरह लगाए। तो सुबह दास फतेहाबाद जिला हमारा वहाँ चला गया, वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया हमने जाके। तो उन्होंने बताया भी आपके तो 8 mm की पथरी है। तो चलो हम वहाँ से आ गए, अल्ट्रासाउंड करवा के हमने बड़े हॉस्पिटल में दवाई नहीं ली क्योंकि पैसा नहीं था इतना। तो अभी नाम दीक्षा ले ली थी हमने। तो हम आए, गुरुजी से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी से। तो गुरुजी ने कहा बेटा दया करेंगे परमात्मा, आप दवाई लो। तो हमने वहाँ आए, वहाँ पे दवाई ली। तो हमने उसके बाद भगत जी 2 दिन में वो पथरी गायब होगी भगत जी। ये सबसे बड़ा लाभ है सर जी। वो पथरी, उसके बाद ना तो दास को दर्द हुआ किसी तरह का, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। 8 mm की पथरी थी वो, ये सबसे बड़ा लाभ है। एक लाभ, दास की शादी नहीं हो रही थी। जैसे हमारे समाज में देश की बहुत बड़ी कुप्रथा चल रही है, तो जैसे रिश्ता आता था भी वो कहते थे हम अपनी लड़की को सोना वगैरह जहाँ कपड़े वगैरह जहाँ दाज दे देंगे, लेकिन हम वो मना कर देते थे। तो वो उठ के चले जाते थे भी इनके पास के ऊपर तो कर्ज होगा, ये इसलिए शादी नहीं करना चाहते, इतना खर्च नहीं करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर जी, संत रामपाल जी की दया से हमने गुरु जी से प्रार्थना लगवाई, तो गुरु जी ने कहा परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद दास की रमैनी भी हो गई, भक्तों में रमैनी हो गई। तो उसमें हमने 1 रुपये का दाज देज नहीं लिया, क्योंकि संत रामपाल जी नियम में बताते हैं कि हमने दाज देज नहीं लेना है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी का रोज़ शाम को चैनल पर सत्संग आता है, तो उसमें नीचे पीली पट्टी चलती है जी, उसमें आश्रम के आसपास के नामदान सेंटरों के नंबर लिखे हुए हैं जी। उन नंबरों पे आप कॉलिंग करिए, तो भक्ता आपका एड्रेस वगैरह लेंगे, आपसे पूछताछ करके आपको नाम दीक्षा संत रामपाल जी से दिलवाएंगे जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। उसके लिए आप जी ने थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान एक ही दिन में समझ में आने वाला नहीं है। 1-2 घंटे के सत्संग में आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सीते 100 घड़ा, समय आए फल हो। तो धीरे धीरे इसको सुनते रहना, आपको बहुत राहत मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि एक तो दास ने यहाँ एक शब्द बोल दिया कि इन शंकराचार्यों और हमारे धर्मगुरुओं, मंडलेश्वरों, इन महंतों संतों को तो ज्ञान होगा कहाँ। जिन भगवानों की ये पूजा दृढ़ करते हैं और कराते हैं, हमें बता रहे हैं ऐसा करो, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म। तो ये बात बड़ी खटके की है और बहुत बड़ा विवाद पैदा कर सकती है यदि दास इसका रिमोट, इसका स्विच नहीं दबाएगा। अर्थात
आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा तो आम व्यक्ति ने सोचेगा ये तो झूठ बोलता है रामपाल, और ये कोई बात हुई, ये कैसे कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं। ये दास ने नहीं कह दिया, इनके इतिहास ने बता दिया, और दास ने इनका इतिहास जीवनी पढ़ ली और इन्हीं उन हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो इन्होंने सोचा यो संस्कृत ना पढ़ रहा है, यो क्या अनुवाद की करेगा, झूठ बोलता। जैसा कि हमारे भगवान के साथ इन्होंने किया था 600 वर्ष पहले। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश देने की चेष्टा की थी, लेकिन इन मोतियाबिंद वाले व्यक्तियों ने, इन अज्ञानी धर्मगुरुओं ने परमात्मा को ये कह करके हमसे दूर कर दिया, नकार दिया उसके ज्ञान को, कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा पढ़ा नहीं, क्योंकि ये शूद्र जाति में रहता है, शूद्र जाति में पल रहा है, और इसको कौन पढ़ावे संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता था। और हमारे परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। यह लड़ाई थी भगवान की, भगवान परमात्मा कबीर जी के साथ और इन अज्ञानी गुरुओं के। ये अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे हिंदू धर्म के व्यक्तियों को, हमारे पूर्वजों को हमारे ही पिता के विरुद्ध कर दिया कि झूठा है, कपटी है, धर्म के विरुद्ध बोलता है, इसको मार डालो, काट दो, ऐसे सितम ढाए। लेकिन वो तो परमात्मा थे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, लेकिन मानने भी नहीं और मानने भी नहीं दिया। ऐसे ही परमात्मा उन मुल्ला और काजियों को कहा करते थे, तुम मिसगाइड किए हुए हो। हजरत मोहम्मद जी ने ये बिस्मल करने की बात नहीं कही थी, तुम अपना मनमुखी ये मार्ग चला रहे हो, पाप का भागी बना रहे हो पूरे समाज को। परमात्मा कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगद जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। फिर क्या बताया कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं ना वेदन माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था कि ये विचारों वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि केवल ब्रह्म तक की है, और यहाँ तक की जो क्रियाएं हैं, यज्ञ हैं, इनकी जानकारी है। ये ब्रह्म तक की साधना है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म और 83 लाख योनियों का संकट सदा बना रहे। लेकिन उस सूक्ष्म वेद में जो मेरे पाने की विधि है, वो ये 4 वेद जानते नहीं। ये खुद कहते हैं हम नहीं जानते, तत्वदर्शी संत से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया गया है। एक तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताई गई है, और एक ये बताया गया कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला साकार बताता है जो अवतार रूप में आता है, कोई निराकार बताता है। इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, अधूरा धार्मिक ज्ञान है, वो कंप्लीट नहीं है। वेद भी उन्हीं का, वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसे तो वो भी नहीं समझ सके। तो परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे गुणों में लिखा भगवान क्या में कि वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है और अपना परिचय देता है, उसको सत भक्ति से परिचित कराता है। तो इसी अपने गुण के आधार से हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय तक उनकी बहुत
प्रभुता हो गई थी, बहुत से अनुयायी हो गए थे, विरोधियों पर भी उनकी सफलता हो गई थी। तो परमात्मा उनको मिले और दिखाया कि आप साधना इस काल भगवान तक की कर रहे हो। कहते हम मोहम्मद को वहां ले गए ऊपर, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, वहां इसकी आस्था बनी नहीं, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा अनुयायी हो गए थे, सब सलाम करनीय सेवक गणे हो गए थे। तो कहने का भाव है कि इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में भेज दी उसकी आत्मा। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं एक गुज यानी गुप्त, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देरे, बिस्मल की नहीं बात कही। कि उन्होंने ये 3 बातें बताई थी, रोजा यानी व्रत रखो, और बंग यानी ऊपर मस्जिद के अंदर चढ़ करके आवाज लगाना, और रोजा नेम बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। अब कहते नेम, कहते ये 5 वक्त की जो नमाज करते हैं, कहते ये 3 बताई थी उनको, ये बिस्मल नहीं करने को कहा था। 4 यार मतलब बिस्मल की थी, और गऊ पकड़ कर बिस्मल की थी। ये तो तुम्हारी अपना मशोरा है, आपकी बनाई हुई एक अपना लोक वेद है। ये हजरत मोहम्मद जी ने ऐसा नहीं कहा। उसके विषय में कहा कि अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बन्नी खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। नबी मोहम्मद नमस्कार है, उतारणीय महापुरुष थे। और राम रसूल कहा, वो तो भगवान का एक संदेश वाहक था, और 1,80,000 उनके अनुयायी थे हजरत मोहम्मद के। वो मुसलमान थे। मुसलमान वही है जो बुराई ना करे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, जीव हिंसा नहीं करता। तो धार्मिक व्यक्ति तो उसी को कह सकते हैं, काटे शीस नहीं दिल करना, बकरे काटे, गऊ काटे, झोटे काट कर बलि चढ़ावे, वो भक्त है। धिक्कार है ऐसी भक्ति को। तो क्या कहा करते, ऐसे ही हिंदुओं में देख लो आप, कामाख्या माई का माता का बोला झोटे चढ़े, बकरे चढ़े, वो बकरे खाओ, वह मूर्ति अकल मारी जा रही बताई हमारी। तो परमात्मा यही कहा करते थे, उनको कहा करते थे कि तुमने ये अपना लोक वेद बना लिया, वो हजरत मोहम्मद जी का दिया हुआ ये ज्ञान मांस खान का नहीं। तो वो उधर से वो भी धर्मगुरु कबीर भगवान के विरोधी हो गए, इधर से हिंदुओं के धर्मगुरु कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए। और सब ने ये कह दिया, जब मारे से मरा नहीं, काटे से कटा नहीं, सब उन्होंने अपने हथियार चला लिए। उन्होंने देखा मरता भी नहीं और चुप भी नहीं होता। तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या जाने हमारे सदग्रंथों के बारे में। ना ये उर्दू पढ़ा, ना फारसी पढ़ा, और ना ये संस्कृत पढ़ा, ये झूठा और कपटी है। तो हमने मान लिया बात उन हमारे नकली गुरुओं की, केवल इसी दृष्टिकोण से कि इन्होंने, हमारे कबीर गुरु जी ने संस्कृत को नहीं पढ़ा, इसलिए ये सच्चाई नहीं बोल रहे होंगे। और पुण्यात्मा उस समय 64 लाख से सो गए थे इस भगवान कबीर साहब के 600 वर्ष पूर्व। 64 लाख से, जबकि पूरे भारतवर्ष की आबादी 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक रहे, इतिहास देख लेना। और उस समय भारतवर्ष कितना बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारतवर्ष ही था। और उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल तो होगी सारी। और 64 लाख से उस परम पिता के हुए थे। एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर के अपने बच्चों को ये तत्व ज्ञान सुनाया करते। अब अपना जैसे कोई मदारी आता है, कहीं खड़ा हो जाता है, ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है, कोई डुगडुगी पीटता है, तो 150 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपना तमाशा दिखाता है, लोग देखते हैं, घंटों बैठे रहते। ऐसे परमात्मा अपने बच्चों के लिए कहीं जाकर प्रकट हो जाते थे। हाथ में एक तारा ले लेते थे, सुरीली आवाज में गाते अपनी अमृतवाणी बोला करते थे, जो हमारी आत्मा की खुराक है। उस आवाज को सुनकर सब आसपास की इकट्ठे हो जाते थे। परमात्मा उनको वाणी के माध्यम से ऐसी मार्मिक बातें सुनाते थे, उनसे चिपक जाती थी वो कोयल के बच्चे।
और उनसे उपदेश लेते थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे, लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाया। कारण यही था कि हमने उनको संत माना, गुरु माना, और ऐसे ऐसी लीलाएं की, इतने सुख दिए उनको। जो भी उनकी शरण में आया आशीर्वाद से ठीक, फिर कुछ मंत्र दे दिए, ये जाप करो। जो ओरिजिनल मंत्र, जो 5 मंत्र होते हैं, वो मंत्र ये निरंकार ओंकार ये नहीं है, वो दूसरे मंत्र हैं, ये दिया करते थे कि जाप करो। तो उससे हमें दोबारा चार्ज करके उस समय परमात्मा, तो उस समय, और हमारे दुखों को दूर करके जो उनके संपर्क में आए, इतना सुख हो उस घर में जिसमें भगवान का उपदेश चला जा रहा, आशीर्वाद मिल जाए, तो सब आसपास के लोग चकित होने लगे। कुछ दिनों में 10-5 वर्ष में, ये कैसे तुम्हारी इतनी बरकत होगी, कैसे तुम सुखी होगे? वो पूछने लगे, हमारे गुरु जी की कृपा है। तो ऐसे देखा देखी लाखों 64 लाख शिष्य परमात्मा के हो गए। और इतना सुख हो गया सबको, क्योंकि वो परमात्मा सुखदाई है, वो सुख का सागर है, वो हमारा पिता है, वो हमारे प्रारब्ध का भी नाश कर सकता है। और बाकी जितने भी संत महात्मा हैं, उनका इतिहास देख लो, उनका अनुभव और उनके विचार सुन लो, पढ़ लो। वो कहते हैं कि प्रारब्ध का में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म दंड को तो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता। फिर बाढ़ में जाओ ऐसी भक्ति जिसमें आपत्ति टूटनी, वह टूटे जावे और उसमें कोई बचाव नहीं हो, फिर क्या भक्ति की आवश्यकता? इसलिए नास्तिक होते जा रहा समाज। और फिर उस पूर्ति को जो भगवान की भक्ति से हमारी होनी थी, हम 2 नंबर का काम करके, रिश्वत लेके, मिलावट करके ऐसे पूर्ति चाहिए हमने। वो दूने पाप इकट्ठे हो गए। एक बार तो धनी होता दिखे, फिर बिरान माटी, दुर्गति, बीमारी, पता नहीं कितनी आपदाएं इंसान पर आ जाती है। तो वहीं का वहीं फिर खड़े हो गया करके, भगवान से दूर भी हो गए, राहत भी नहीं मिली। तो भक्ति की विधि की कमजोरी थी। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सत साधना ना मिलने से, जो पाप नाशक है उसकी शरण ना मिलने से, हमने जो हमारे पाप नाश नहीं कर सकता, उन भगवानों को पाप नाशक जानकर लोक वेद के आधार से स्वीकार कर रखा था। ये मूल कारण। अब हम उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। अब कबीर परमात्मा ने इस दास को मेरे पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक मुझे दे दिया। अब उस रोशनी में, उस टॉर्च में ये दास आप भी उसी ठीक रास्ते से जा रहा है, और जो दास पर विश्वास करते हैं उनको भी वो टॉर्च दे देता हूं जो मालिक ने मुझे दे रखी है। और आप भी फिर उसी टॉर्च को देख देख कर चलोगे, भटकोगे नहीं मार्ग को। अब जब हमारी आंखें बनेगी, अंधा तो कहीं भी कोई भ्रमित कर सकता उसको। तो पहले दास चाहता कि आपकी आंखें बनाऊं, इनको आंखों की रोशनी लाऊं, यानी तत्व ज्ञान रूपी ये ज्ञान आपको दूं, और ये चश्मा समझो, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करूं। ये बरवाला आश्रम में ही केवल ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन है ज्ञान का, न विश्व में कहीं पर भी ज्ञान नाम की चीज नहीं। ये सत्कर्माल। थोड़ा सा दास ने एक प्रश्न बोला था, एक शब्द कहा था कि इन शंकराचार्यों को और हमारे हिंदू धर्म के गुरु मंडलेश्वरों को ज्ञान कहाँ से होगा, जिनको ये भगवान संपूर्ण परमात्मा मानते हैं, नारायण मानते हैं, अजरो अमर मानते हैं, इनको ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो पुण्यात्मा, ये एक 10वां 11वां अजूबा है जो ये बात कहनी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। लेकिन आज परमात्मा के बच्चे शिक्षित हो गए। नहीं तो पहला लठबाज लो मेरी गेला, और वो कर भी दिया था ना क्रोथा कांड। यही कारण था दास ये सच्चाई का था नकली आचार्यों की।
या दुकानें बंद होने के कागार पा गई थी, ने सोचा रोला रला दे बात, दुनिया को बदनाम कर दो रामपाल को। कहीं ये सच्चाई जनता तक पहुंच गई तो तुम्हें धिक्कारेंगे और तुमसे भाग जाएंगे, तुम फिर कहां से चंदा मांग कर लाओगे। तो वो क्रोथा कांड करा दिया। लेकिन वह लीला थी दाता की, अपनी समर्थता दिखाई, आज सच्चाई ऊपर आई और पूरा विश्व धिक्कारेगा उन दुष्ट लोगों को जिन्होंने इतना दूर कर दिया समाज को, जो बहुत पहले हमारे पास आकर कल्याण कराना था। ये उनका दुर्भाग्य था इस जनता का, जिनको ऐसे दुष्ट लोग मिले, जिन्होंने, मीडिया ने भी उनका सहयोग दे दिया। मीडिया की ये काम होता है, गंदे विचारों को जनता में भर रहा है मीडिया, चाहे टीवी है चाहे समाचार पत्र है, ना को भक्ति मार्ग ना को सच्चाई का आधार। तो इस तरह हमें इन अज्ञान और इस पाप से परिपूर्ण कर दिया। अब इस तत्व ज्ञान से और इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे अंदर पुण्य बनेंगे। जहां जहां भी ये टीवी पे भी विचार जाते हैं, कबीर साहब दास बोल रहा है कबीर परमात्मा की अमृतवाणी, तो जहां जहां जिसके कानों में पशु पक्षियों पर भी पड़ेंगे, उनमें भी असर करेंगे। ये सत्कर मानना, ये परमात्मा की वाणी है। और जो आज तक हमने जितना भी पाप इकट्ठे किए, ये वाणी के कुछ पाप ऐसे इस वचनों से खत्म होते हैं। जैसे पुराने समय में कुछ तो वैद्य लोग अपनी वैद्य दवाइयों से इलाज करते थे, सर्प दंश का, सर्प काटे का, और कुछ ऐसे मंत्र बोलकर सिद्धि प्राप्त सिद्ध कर लेते थे मंत्रों को, वेद मंत्रों को, जो सर्प के विष को खत्म कर देता था, मंत्र बोल बोल के, वो वाणी उच्चारण कर करके। तो जैसे कोई सर्प डसा हुआ व्यक्ति बेहोश पड़ा है, अचेत, और वो मंत्र बोल रहा है, बोलने वाला गारडू, वो सुन नहीं रहा वो व्यक्ति, लेकिन वो मंत्र उसकी बॉडी पर असर कर रहे हैं, उसकी आवाज बोल, वो मंत्र की जो आवाज है, वचन, और धीरे धीरे उसका सर्प का वो विष उतर जाता था और वो सचेत हो जाता था। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ये अमृत वाणी परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया जो तत्व ज्ञान है, ये सब सिद्ध वाणी है। लेकिन ये आम व्यक्ति के माध्यम से बोली गई तो उससे तो फिर वो असर करेंगी नहीं, क्योंकि कोई भी जैसे सिरंज है और सिरंज डिफेक्टिव है, उसमें स्वयं ही कुछ और डंगा है और उसके माध्यम से दवाई वह काम ना करे, रिएक्शन और करेगी। तो परम संत जो उसका अधिकारी है, उसके माध्यम से फिर वही वचन, वही औषधि बोली दी जाएगी कानों के माध्यम से, तो वो तुरंत असर करेगी। और जो नहीं सुन सकता, नहीं समझ सकते, पशु पक्षियों पर भी ये उस गारडू के मंत्र की तरह काम करेगी। और जैसे अब टीवी पर चल रहा है ये प्रोग्राम, जनता को सौहा गया ये सच्चाई, क्योंकि समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है। आज कोई बालक नहीं, कोई इसको ढूंढना में बलो दे। अब तो दूध के जले हुए फूक मार मार कर पीवेंगे इस लस्सी को भी। तो दास चाहता है कि अच्छी तरह समझे, खूब ध्यान से सुने, 100 बार सुने, और फिर नाम लेना हो, आते कल्याण हो जाएगा, असमंजस में ना रहे। तो ये जो ज्ञान है, अब इस मीडिया का काम ये चाहिए था कि इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलावे, और इसका असर होगा सब प्राणियों पे, और जो इसमें सहयोग देता उसको भी पुण्य होता है। अरे नकरा सारा उल्टा काम, कर्म फोड़ दिया, अपने अपने भाग बिगाड़े और जनता को भगवान से दूर करने के ये महापापी हो गए। अब दास की प्रार्थना है कि पीछे हुआ सो हुआ, अब तो समाज जागना चाहिए, और एक दिन आवेगा, याद रख लेना। इस परमात्मा के दास जो बोल रहा है भगवान की वाणी, इसके अतिरिक्त कोई सत्संग टीवी पर नहीं रहेगा, ये याद रख लेना इस बात को। वो ज्ञान है, सारी बकवास सुनाने लग रहे, वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, वही राधा स्वामी धाम, वही सतनाम, ये इनके सत्संग सिर न पैर किसी का। और ये जो हमारे धर्म गुरु सुनाते हैं, सारा गीता जी के विपरीत ज्ञान, वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान देते हैं। इन्हें कौन सुना करेगा? ये ऐसे बकवादों को जो इन हमारे अंदर ठोक रखी थी, हमें मूर्ख बना रखा था, कोई नहीं सुनेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा, केवल यही सत्संग विश्व में और यही ज्ञान और एक भगवान कबीर साहब ही रहेगा। ये भगवान का आदेश समझ लो। और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा, अब होगा।
ये जय गुरुदेव मथुरा वाला उस राधा स्वामी वाले ही विचारों को, शिवदयाल जी वाले विचारों की को नई बोतल में डाल कर जय गुरुदेव बना कर धर गया। और सन 1950 से सत्संग कर रहा है और अब इनकी मृत्यु हुई अभी इस मई के महीने में उस श्री तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की। और ये कहा करता था कि जय गुरुदेव सतयुग आओगा, हमारा जन्म भी ना हुआ था। हम जब थोड़े बहुत होश में आए, जब दीवारों पर लिखा देखा करते जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा। वहां भी बड़ी अच्छी बात, सतयुग आओगा, हमारा सही टाइम पर जन्म हो गया। अब कलयुग तक और आ गया, पर सतयुग आसपास दिखा नहीं हमने। कलयुग और आ गया, बल्कि उससे बढ़ गया। वो पुण्यात्मा थे, बहुत पुण्यात्मा थे, पिछले जन्म के भक्ति से परिपूर्ण थे। लेकिन आगे जैसे कोई बैटरी चार्ज होती है पहले की, इन्वर्टर भी, उस इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, चाहे उस पर चार्जर भी नहीं लगा रहा, कनेक्शन कट रखा है, तो भी वो अपना काम करती है। पंखा भी चलता है, ट्यूब भी जगती है, और ऐसे लगता है बिल्कुल ठीक है। आगे चार्जर ना होने से एक कदम सब सुविधाएं बंद हो जाती हैं, वो फिर फटफट करके बंद हो जाता है। तो ये पुण्यात्मा थे। शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक को परम धनी मान के इसका फंस गए, उसी परंपरा से जुड़े हुए थे, क्योंकि अब स्वयं इनके वचन में शक्ति थी, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनसे भी अधिक थोड़े ही समय में जनता को अपने पीछे लगा लिया, महात्मा बुद्ध की तरह। और पुण्यात्माओं, सत्कर मान लेना, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सच्चा सौदा पंथ, और ये बालयोगेश्वर पंथ, और ये निरंकारी पंथ, ये सारे काल प्रेरित पंथ है। और इनके द्वारा बताई गई साधना बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल नहीं। तो पुण्यकर्मी प्राणी अपने आप पिछले संस्कारों से थोड़ा बहुत लाभ हो रहा था, जैसे दास बता रहा था, और इन्हीं को श्रेय मिल रहा था कुछ। अगर ये भक्ति स्टार्ट ना होती, दाता हम दया नहीं करते, तो वो चीन जैसा हाल भारत में हो जाना था, और 50-100 वर्ष के बाद। ये गारंटीड बात समझे। भक्ति में आस्था नहीं रहती, सभी भगत इतने, और जो की तो बकवादे, किसी ने विकार छोड़ नहीं रखे, कोई बुराई त्याग नहीं रखी है, तो सब वही नो के रिश्वतखोरी, शराब के ठेके बढ़ गए, तम्बाकू का सेवन बढ़ गया, भांग पीने लग गए, सुल्फे पीने लग गए बच्चे। अब इस ज्ञान से अब धीरे धीरे देखना, ऐसे शांति आ जाएगी। माया किस लिए जोड़ते हो? बड़ी कोठी बनाएंगे, बड़ी कार खरीद कर चलेंगे, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा, कुत्ता बन के सैर सपट्टा, कभी कार के नीचे घर, कभी कोठी के पीछे गए, वहीं घूमया करेगा। तो जो कार्य हमने करना चाहिए था वो भूल रहे थे हम, अब उसको करेंगे। और उसके करने से ये सुख जो भौतिक है, ये तो बिना मांगे आपके चरणों में पड़ी रहा करेंगे। ये परम पिता का वचन समझ लेना, कबीर भगवान का। सत्कर मानना। तो कारण क्या है कि आप जब दुखी होते हो, आपका प्रारब्ध में पुण्य नहीं रहे, और प्रारब्ध में पाप शुरू हो गए, पापों का नाश आप भोग कर करना ही मानते रहे। अब परमात्मा कबीर जी का ये मंत्र इतना स्ट्रॉन्ग है, इससे वो प्रारब्ध के पाप नाश हो जाएंगे, सुख हो गया। पैर में कांटा लगा हुआ है। अब इन लोगों का तो ऐसा विधान था जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है, और वो कहता है कि जी मुझे पैर में दुख हो रहा है। उसने धो मांझ कर देख लिया कि इसको आपको कांटा लगा है। अब उसको कोई कहे भी फिर क्या समाधान है कि देखो कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। अब कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहने, और इस डर से पहनेगा कहीं फिर ना कांटा लग जा। तो पुण्यात्माओं, इस सतलोक आश्रम में कबीर परमात्मा आपके प्रारब्ध कर्म में लगे हुए उन पाप कर्म रूपी कांटों को निकालेगा, और फिर राम नाम का जूता देगा आपको। आप इस डर से नहीं उतारोगे हे भगवान कहीं फिर आपत्ति ना आ जाए, तो फिर दास जो आपको मर्यादा बताओगा कि ये हानि करेंगी, तो आप कैसे कर दोगे उनको? आप सपने में भी ना करो उस गलती को जिससे इतनी आपत्ति आपके आ गई थी।
तो इस कारण से आप हमारा समाज एकदम मानव समाज बुराइयों से ऐसे बहुत दूर हो जाएगा। अब हमारा माहौल खराब हो गया, सब जगह कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई बकवाद कर रहा है, तो हमारे बच्चे फिर उनके सराउंडिंग रहते हैं तो वो सारे ऐसी ही बुराई करेंगे। अब हमारी बहुसंख्या हो जाएगी बुराइयों से दूर रहने वालों की, तो हमारे संग में आएगा उनको भी हम ना भाई यहाँ नहीं पीना, दे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, हमारे घर में भी मत पीना, हमें हानि हो जाएगी, तो वो भी लज्जा आएगी उनको। एक भगत कह रहा था जी मैं तो इस मेरे भतीजे ने भगत बना दिया। बोला कैसे? कि मेरे छोटे भाई का लड़का, मुझे बहुत प्रेम उसमें, और वह कहीं नौकरी करता था, साल भर के बाद आया, मैंने उसको प्यार से अपने लगा उठाया गोदी से, तो मेरे मुंह से बीड़ी की बदबू आ रही थी, तब तो वो चुप रहा, उसको पता नहीं ये कहाँ से आ रही है। फिर मैंने बीड़ी लगाई, कहने लगे अंकल ताऊ जी नहीं, यहाँ पीना भी नहीं हमारे घर पे, इसको फेंक दे, बहुत बुरी चीज है। मैंने जैसे तैसे करके वो कहता रहा, मैंने पी ली, उठ के चला गया, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। अब वो ऐसे ही करता रहा, कई बार मन में शर्म आने लगी कि छोटा सा बालक और ये ढूंढे या बुरी चीज और मैं पीऊं। उन्होंने बोला मैंने वह फेंकनी पड़ी, नाम तो लिया और बाद में, पर उसके कहने से बुराई छोड़नी पड़ी। तो पुण्यात्मा ऐसी स्थिति आएगी, अब तो एक दूसरे ने बुराई का लगा रहे हैं, न पीले पीले के फर्क पड़े, ला एक गुट्टी ला ले हैं, और फिर ना भाई खबरदार इसका हाथ न लगिए, दूर हमारे पास ना पीना, सिर में चढ़ जाती है। और सचमुच ऐसा ही होगा आपके कुछ दिनों। तो इस पूरे विश्व में ये बहुत जल्दी हटेगी, सब दुखी है। ये कोई खान पीन की चीज है, मांस और शराब और ये बकवास, बीड़ी, एक तम्बाकू हुक्का पीने वाला व्यक्ति, एक सिगरेट वाला हुक्का पीता है, धुआं छोड़ता, पूरे घर के वातावरण में घोल देता उसको, तो वो उसका पिया हुआ उसके बच्चे भी पीवे, उसके सांसों द्वारा अंदर जा, उसकी पत्नी बच्चे बहन भाई सब, वो सब का नाश कर रहा है। तो इस प्रकार इस बुराई से हमने दूर होना पड़ेगा, होंगे ही, हम बालक थोड़े हैं, और परमात्मा साथ देगा इस जीव का, नहीं जीव के बस का नहीं, बुराई छोड़ दे, मालिक का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। अब दास आपको एक प्रसंग, एक कंसेप्ट क्लियर करने चला है कि दास ने एक वचन बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अध्यात्म ज्ञान नहीं, तो इन हमारे आचार्य शंकराचार्यों और गुरु धर्म गुरुओं को कहां से होगा। अपने आत्माओं, हम इन अपने धर्म गुरुओं से पूछा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये इनके कोई माता पिता हैं, ये कहा करते ये तो अजन्मा है। कुछ एक तो ये कहा करते ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, उसका तो सीमा है, आयु का समय है, लेकिन शंकर जी और विष्णु जी ये अजर व अमर हैं, ये तो अविनाशी तत्व हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। और फिर कोई इनसे पूछता कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, तो कोई तो हमारे ये नकली धर्मगुरु कहा करते या अपने स्वरूप का ध्यान करते, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म की आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, उस वाक्य को, अपने उस अज्ञान वाक्य को और प्रमाणित करने के लिए अब ना इन्होंने सदग्रंथों को आधार बनाया, अब पुराणों को ये सत्य मानते हैं हमारे धर्मगुरु, पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु जितने भी हैं ये पुराणों को सत्य मानते हैं। और फिर ये कहते हैं भगवान विष्णु या भगवान शंकर जी ये किसी का ध्यान नहीं करते, और कोई कहता नहीं ये किसी का ध्यान नहीं करते। कोई क्या कहता है कि श्री विष्णु जी शंकर जी श्री राम का ध्यान करते हैं, और कोई कहता है कि कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। इतना मूर्ख बना रखा हमारे को। अब ये क्या किसका ध्यान करते थे ये आपको दिखाते हैं। और ये कहते हैं, कोई तो कहता नहीं ये किसकी भक्ति करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं करते। अब दिखाते हैं आपको इनकी जीवनी में। तो पुण्यात्मा हमारे लिए हमारे ग्रंथ आधार थे, आज भी इनको आधार मानकर हम अज्ञान को हटा सकते हैं। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी।
और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और वहीं से मुद्रित है। मुद्रक प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहां देखिएगा, हम इसको पढ़ेंगे 30 पहला स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ से। ये व्यास जी और नारद जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से किया था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार। नमस्कार सर। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सर जी मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा, पिंड सड़वा, तहसील बलाचौर, जिला नवांशहर ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਐਡੀਲੇਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਮੰਦਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਝੁਕਾਅ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿਆਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਪੁਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਚੂੜਾ ਚਾਂਦਪੁਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਝਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ 3-4 ਘੰਟੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ 2-4 ਲਾਭ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ 87% ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪੇ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮ, ਮਨ ਇੱਛਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 331 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ MBBS ਦੀ ਸੀਟ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ, 4 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿਆ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ।
ਕਦੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਹੋਣੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਗੇਟ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਫੜ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰਨਾਮ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 84 ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਗਤੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹਾਲ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਟਰਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕਾਲਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰਨਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਉਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹਿ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਸਭ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮਧੂ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਂਝੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਆਏ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਹਿ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਿ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰਨਾਮ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।